11. Our public relations policy is based on attraction rather than promotion. We need to always maintain personal anonymity at the level of press, radio, and films. Without its legions of well-wishers, AA could never have grown as it has. Throughout the world, immense and favorable publicity of every description has been the principal means of bringing alcoholics into our fellowship. In AA, offices, clubs, and homes, telephones ring constantly. One voice says, I read a piece in the newspapers. Another, we heard a radio program. And still another, we saw a movie picture. Or we saw something about AA on television. It is no exaggeration to say that half of AA's membership has been led to us through channels like this. The inquiring voices are not all alcoholics or their families. Doctors read medical papers about Alcoholics Anonymous and call for more information. Clergymen sees articles in the church journals and also make inquiries. Employers learn that great corporations have set their approval upon us and wish to discover what can be done about alcoholism in their own firms. Therefore, a great responsibility fell upon us to develop the best possible public relations policy for Alcoholics Anonymous. Though many painful experiences, we have arrived at what policy ought to be. It is the opposite in many ways of usual promotional practice. We found that we had to rely upon the principle of attraction rather than promotion. Shall I continue? Yeah. Let's see how these two contrasting ideas, attraction and promotion, work out. A political party wishes to win an election, so it advertises the virtues of its leadership to draw votes. A worthy charity wants to raise money. Forthwith, its letterhead shows the name of every distinguished person whose support can be obtained. Much of political and economical and religious life of the world is dependent upon publicized leadership. People who symbolize causes and ideas fill a deep human need. We of AA do not question that, but we do have soberly face the fact that being in the public eye is hazardous, especially for us. By temperament, nearly every one of us had been an irrepressible promoter and the prospector of a society composed almost entirely of promoters was frightening. Considering this explosive factor, we knew we had to exercise self-restraint. The way this restraint paid off. Okay. Over to you, Pushan. Lucky ji. Sorry. Yes, थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर लिया हुआ है। ए के तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और जैसे जैसे उसकी रजा में चल रहा है सब ठीक है। आज हम ट्रेडिशन 11वें पे आए हैं और ट्रेडिशन 11वां हमारा अनामिकता का ट्रेडिशन कहा जाता है। और हम जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं तो हर बार अनामिकता बोलते ही हैं। तो आइए देखते हैं इस ट्रेडिशन के ऊपर बिल ने क्या हुआ, क्यों ट्रेडिशन आई और हम ऐसे क्यों बने जैसे हैं। तो ट्रेडिशन 11 का हिंदी अनुवाद ऐसा है कि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, प्रचार प्रसार पर नहीं। हमें हमेशा प्रेस, रेडियो और फिल्मों के स्तर पर अपनी व्यक्तिगत अनामिकता बनाए रखनी चाहिए। अपनी असंख्य शुभ चिंतकों के बिना AA कभी भी इतना नहीं बढ़ सकती थी। दुनिया भर में हर प्रकार की विशाल और अनुकूल जन प्रचार हमारी फेलोशिप में शराबियों को लाने का मुख्य साधन रहा है। AA के दफ्तरों, क्लबों और घरों में टेलीफोन लगातार बजते रहे हैं। एक आवाज कहती है, मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा। दूसरी कहती है, हमने एक रेडियो कार्यक्रम सुना। और कोई कहता है कि हमने एक फिल्म देखी या हमने टेलीविजन पर AA के बारे में कुछ देखा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि AA की आधी सदस्यता इन्हीं माध्यमों के जरिए हमारे पास आई है।
जो पूछताछ करने वाली आवाजें आती हैं वे सिर्फ शराबियों या उनके परिवारों की नहीं होती। डॉक्टर अल्कोहलिक्स अनोनिमस पर लिखे चिकित्सा पत्र पढ़ते हैं और अधिक जानकारी मांगते हैं। धर्मगुरु अपने चर्च पत्रिकाओं में लेख देखते हैं और वे भी पूछताछ करते हैं। नियोक्ता यह जानकर कि बड़ी कंपनियां इसका समर्थन करती, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अपनी कंपनी में अपनी कंपनियों में शराब की समस्या के बारे में क्या किया जा सकता है। इसलिए ए के लिए सबसे अच्छी जनसंपर्क नीति विकसित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी हम पर आ गई। कई दर्दनाक अनुभवों से होकर हम सोचते हैं कि हमने समझ लिया है कि वह नीति कैसे होनी चाहिए। यह कई मायनों में सामान्य प्रचार पद्धति के विपरीत है। हमने पाया कि हमें प्रचार के बजाय आकर्षण के सिद्धांतों पर निर्भर रहना होगा। आइए देखें ये दो विपरीत विचार, आकर्षण और प्रचार, कैसे काम करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए वह अपनी नेतृत्व क्षमता का विज्ञापन करती है ताकि मतदाता आकर्षित हो। एक योग्य चैरिटी धन जुटाना चाहती है, तुरंत ही उसके लेटर हेड पर हर उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम छप जाता है जिसका उन्हें समर्थन मिले। दुनिया का बहुत सा राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन प्रचारित नेतृत्व पर निर्भर करता है। जो लोग किसी उद्देश्य या विचार के प्रतीक बनते हैं, वे एक गहरी मानवीय आवश्यकता को पूरा करते हैं। हम ये वाले इस पर प्रश्न नहीं उठाते हैं कि समाज क्या करता है, लेकिन हमें गंभीरता से इस तथ्य का सामना करना पड़ता है कि सार्वजनिक नजर में आना विशेषकर हमारे लिए खतरनाक है। स्वभाव से हम में से लगभग हर व्यक्ति एक अजेय प्रमोटर है और लगभग पूरी तरह प्रमोटरों से बनी एक सोसाइटी की कल्पना डरावनी थी। इस विस्फोटक तत्व को देखते हुए हम जानते थे कि हमें आत्म संयम का पालन करना होगा। यहाँ पे बिल हमें पहले 4 पैराग्राफ्स में आकर्षण और प्रचार के बीच में का फर्क बताने की कोशिश कर रहा है और बाहर की संस्थाओं के साथ में तुलना करता है जहाँ पे लोग प्रचार करते हैं, अपनी लीडरशिप का प्रचार करते हैं और वो प्रचार के लिए वो बड़े बड़े लोगों को जो ऑलरेडी समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनका साथ लेते, उनका सहारा लेते, उनका नाम, उनका फोटो, उनका बैनर, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां भी अपने बड़े नेता को लेके डालती हैं। इवन कई धार्मिक संगठन भी अपने गुरु को या अपने संतों को फोटोज छापते हुए वो हिसाब से अपना काम चलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमको पहले 10 ट्रेडिशंस में जो हमने बहुत सारे अनुभव सुने, उन अनुभवों में हमें ये पता चल गया था कि हमारे लिए ये खतरनाक है, सार्वजनिक नजर में आना। और अगर हम सार्वजनिक नजर में आए बगैर आना नहीं चाहते हैं तो प्रसार हम कर नहीं सकते, प्रचार हम कर नहीं सकते। और तो इसी कश्मकश में ये बात तय होती है कि हम प्रचार नहीं, हम आकर्षण के रास्ते पे जाएंगे। और तो और बिल आखिरी के पंक्तियों में लिखता है कि हम सभी ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बड़ा सपना देखते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रमोटर कहता है बिल। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े सपने, बड़ी चीजें करना चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं, अव्वल बनना चाहते हैं हर दर्जे में। और ऐसे विचारों वाले, ऐसे रिस्क लेने वाले लोग और ऐसे रिस्क लेने वालों लोगों की संगठना जब भी होगी तो बिल कहता है कि वो इतने प्रमोटरों से बनी सोसाइटी की कल्पना भी डरावनी थी हमारे लिए। यानी कि अगर हम प्रचार के माध्यम में जाते तो फिर भूषण का नाम लेते या लकी का, या किसका नाम लेते या किसका, किसको आगे बढ़ाते, किसको चेहरा बनाते। ये सारी चीजों का पूर्व अनुभव हम तब तक ले चुके थे और इसी वजह से ये पहले के 4 पैराग्राफ में बिल हमें
ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने ये तय किया कि हमें आत्म संयम का पालन करना होगा। ओवर टू पुष्कर। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ। चलो हाय भूषण। ये ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म है वो देखते हैं। तो our relations with the general public should be characterized by personal anonymity। पहला वाक्य कहता है कि लोगों के साथ, जनरल पब्लिक यानी समाज के साथ में हमारा जो संबंध रहेगा उसमें हमारे को व्यक्तिगत रूप से अनामिक ही रहना योग्य होगा। We think AA ought to avoid sensational advertising। हमारा ये मानना है, हमारा ये विचार है कि किसी भी प्रकार का सेंसेशनल यानी क्या कहेंगे उसको, इन द फेस यानी जो हैरत अंगेज करने वाला। क्या करने वाला, हैरत अंगेज करने वाला जो जाहिरातबाजी है वो नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई टॉल क्लेम्स या बड़ी बड़ी भाषा या बड़े बड़े शब्द या बड़े बड़े क्लेम, ऐसा हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहिए। Our names and pictures as AA members ought not be broadcast, filmed or publicly printed। हमारे नाम या हमारे चेहरे AA मेंबर करके कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट नहीं होने चाहिए, पिक्चराइज नहीं होने चाहिए या पब्लिकली प्रिंट नहीं होने चाहिए। Our public relations should be guided by the principle of attraction rather than promotion। हमारे जनसंबंध जो है वो हमेशा उनका मार्गदर्शक तत्व जो है वो आकर्षण का होना चाहिए, प्रमोशन का नहीं। There is never need to praise ourselves। हमें अपने आप की तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। We feel it better to let our friends recommend us। हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो मित्र है उन्हीं ने हमारा जो हमारी जो तारीफ है, हमारा जो प्रेज है वो करना ये जरूरी है। तो ये दोस्तों, ये पब्लिक रिलेशंस की पॉलिसी बनाने की जरूरत क्या थी? तो शुरुआत के दिनों में वो जो पीरियड हम लोग देखते हैं 1941 से लेके 1946 तक का जो पीरियड देखते हैं, ये पीरियड में लोगों का जो अनामिकता का जो प्रति जो डर था वो डर निकल गया था और हमें ऐसे लग गया था कि हमारे पास कुछ ऐसा साधन, एक ऐसा मैसेज मिला है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं, जिससे हम शराबियों की जान बचा सकते हैं। सडनली कल तक हम लोग छुपे हुए जो अंधेरे में शराबी करके मुंह छुपाए हुए जो घूम रहे थे, आज हमारे बारे में अखबार, हमारे बारे में रेडियो टेलीविजन पे सब जगह पे बातमियां छपने लगी। लोग हमारे बारे में एकदम खुल कर हमारी तारीफ करने लगे और हमारे जो अर्ली मेंबर्स थे उनको ऐसे लगने लगा कि दिस इज आवर मोमेंट ऑफ स्पॉटलाइट। ये हमारा टाइम आ चुका है, यही समय है, हम बदलाव लाएंगे। अब इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा उत्साही जो सदस्य थे, उन्होंने जैसे कहते ना कि छत के ऊपर जाकर चिल्ला कर बताना चालू कर दिया कि हम AA के सदस्य हैं और हम समाज को सुधारेंगे, हम शराबियों को सुधार के रखेंगे। तो कई बार शुरुआत के दिनों में ऐसे अनुभव आए कि जो व्यक्ति अपना चेहरा दिखा रहा है उसे, और जिसका इंटरव्यू पेपर में छपा हुआ है, अगले ही दिन उसको कहीं पीकर टाइट होकर पाया गया है, या किसी को
लोगों ने बहुत चढ़ाया है या किसी चेहरे के साथ में जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम जुड़ जाता है तो वो चेहरा, जैसे हमारे सभी शराबी होने की वजह से हमारे सभी के पैर मिट्टी के हैं, हम में से कोई भी कभी भी बहक सकता है, और खास तौर पर जब हमारी स्तुति हो, जब हमारी तारीफ हो, जब हम जिस चीज के लिए तरसे हुए थे कि लोगों का मान सम्मान हमें मिले, और वही जब भी मान सम्मान हमें मिल जाता है तो उसे हजम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए एक ऐसी अवस्था आ गई कि बिल डब्ल्यू को रियलाइज होने लगा था कि अगर इसे रोका नहीं गए, ये पर्सनल ग्लोरिफिकेशन जो है, ये जो लोग छाती पीट पीट कर अपनी ये सदस्यता के बारे में बोल रहे हैं, इसे रोका नहीं गया तो आज इनके सक्सेस को ए का सक्सेस माना जाता है, कल इनके फेलियर को ए का फेलियर माना जाएगा। और ऐसे कुछ हुआ, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में, कुछ मैगजीन्स में ऐसी कहानियां छप गई जहां हमारे काफी प्रचलित जो कुछ सदस्य थे जो दोबारा शराब पिए किसी वजह, तो लोगों ने ये संभव डाउट करना शुरू किया कि ये एएफ का फेलियर है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेल हो रही है। लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो व्यक्ति फेल हो रहा है, लोगों को ये लगने लगा कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेल हो रही। और जब ही ये दिखने लगा कि आदमी का सक्सेस भी जुड़ा जा सकता है, वैसे आदमी का फेलियर भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फेलियर के साथ में जुड़ा जा सकता है, तभी बिल डब्ल्यू को ये ख्याल आया कि हमें अपने अंदर की जो प्रमोटर इंस्टिंक्ट है, हम सब एडवर्टाइजर्स है, हम सब बहुत बड़ी बड़ी हाँकने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, हम सभी लोग लार्जर देन लाइफ जीने वाले लोग हैं, हमारे सपने बड़े बड़े, हमारे ख्याल बड़े बड़े, हमारी बातें बड़ी बड़ी, ऐसे हम लोग हैं। और ये लोगों को अगर खुला मैदान में छोड़ दिया तो ये जाके कुछ भी हाँकेंगे, कुछ भी बोलेंगे। सबसे बेहतर है कि अगर हम अपने आप को काबू में रखने के लिए सीखें। तो इससे दो बातें होगी, एक तो हमारे से जब हमारा चेहरा ही नहीं दिखेगा, हमारा नाम ही नहीं आएगा, तो हमारे नाम या चेहरे के साथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जोड़ा नहीं जाएगा। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो तत्व है उनका महत्व है, व्यक्तियों को महत्व जो है वो कम किया जाए, क्योंकि व्यक्ति फेल हो सकती है, तत्व फेल नहीं होंगे। तो एक यानी व्यक्तियों के नाम से या चेहरे से जुड़ा नहीं जाएगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और दूसरा मेरे में भी नम्रता बनी रहेगी कि मैंने अगर 10 लोगों की मदद की है शराब से दूर होने में, तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपना संदेश वहन का काम कर रहा हूं, मुझे इसमें से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। ये जो सात्विक भाव जो है, एक सेवा भाव जो है, वो सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा ईगो, और ये ईगो को हम लोग रोक सके तो हमारी बहुत सारी समस्या जो है ये कम हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके पीछे की वो आइडिया है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट, हम अपने आप को काबू में रख सके। और फिर जो अगला मुद्दा जो आता है कि अगर बात करना ही है तो हम नहीं अपनी हाँकेंगे, हम अपनी तारीफ अपनी मुंह से नहीं करेंगे, हमारे दोस्तों को, हमारे हितचिंतकों को हमारे बारे में बात करने दो। तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि अरे इस मरीज को मैं काफी टाइम से ट्रीट कर रहा था लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा था, मैंने इसके जिंदा रहने की अपेक्षा ही छोड़ दी थी, लेकिन ये एए में गया और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आज ये सिर्फ ठीक नहीं बल्कि समाज का एक उपयुक्त सिटीजन बन चुका है। ये जब डॉक्टर बोलेगा तो उसकी बोलने को वजन ज्यादा मिलेगा। मैंने ही अपना टम 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 बजाने का, उससे बेहतर है कि कोई डॉक्टर या वर्तमान पत्र या टेलीविजन स्टेशन हमारे कार्य के बारे में बात करे, हमारे तत्वों के बारे में बात करे, हमारे लिटरेचर के बारे में बात करे। तो जो फर्क यहाँ पर जो बताया जाता है कि हमारा नैसर्गिक टेंडेंसी ये है कि हम अपने आप को प्रमोट करना चाहेंगे कि हम देखो अभी सक्सेसफुल हो गए, हम अभी खुद तो ठीक हो ही गए, हम लोगों को भी ठीक करवा रहे हैं। ये जो हमारा ईगो बूस्टिंग प्रपोजिशन है,
इसे रोकेंगे और हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, हम अनामिक ही रहेंगे। जहां पर पब्लिक का सवाल है, जहां पर मास मीडिया का सवाल है, वहां पर हम लोग अनामिक ही रहेंगे। और अगर पब्लिक में किसी ने हमारे बारे में वक्तव्य करना ही है, किसी ने बात करनी ही है, तो वो हमारे मित्र हमारे बारे में बात करें। ओवर टू यू चंद्र। Thank you, Bhushan. I'll continue. The way this restraint paid off was startling. It resulted in more favorable publicity of Alcoholics Anonymous than could possibly have been obtained through all the arts and abilities of AA's best press agents. Obviously, AA had to be publicized somehow, so we resorted to the idea that it would be far better to let our friends do this for us. Precisely that has happened to an unbelievable extent. Veteran newsmen, trained doubters that they are, have gone all out to carry A's message. To them, we are something more than source of good stories. On almost every news front, the men and women of the press have attracted themselves to us as friends. In the beginning, the press could not understand our refusal of all personal publicity. They were genuinely baffled by our insistence upon anonymity. Then they got the point. Here was something rare in the world, a society which said it wished to publicize its principle and its work, but not its individual members. The press was delighted with this attitude. Ever since, these friends have reported AA with an enthusiasm which the most ardent members would find hard to match. There was actually a time when the press of America thought the anonymity of AA was better for us than some of our own members did. At one point, about 100 of our society were breaking anonymity at the public level. With perfectly good intent, these folks declared that the principle of anonymity was horse and buggy stuff, something appropriate to AA's pioneering days. They were sure that AA could go faster and farther if it availed itself of modern publicity methods. AA, they pointed out, included many persons of local, national, or international fame. Provided they were willing, and many were, why shouldn't their membership be publicized, thereby encouraging others to join us? These were plausible arguments, but happily our friends of the writing profession disagreed with them. The foundation wrote letters to practically every news outlet in North America, setting forth our public relations policy of attraction rather than promotion and emphasizing personal anonymity as AA's greatest protection. Since that time, editors and rewrite men have repeatedly deleted names and pictures of members of AA from AA copy. Frequently, they have reminded ambitious individuals of AA's anonymity policy. They have even sacrificed good stories to this end. The force of their cooperation has certainly helped. Only a few AA members were left who deliberately break anonymity at the public level. This, in brief, is the process by which AA's Tradition 11 was constructed. To us, however, it represents far more than a sound public relations policy. It is more than a denial of self-seeking. This tradition is a constant and practical reminder that personal ambition has no place in AA. In it, each member becomes an active guardian of our fellowship. हो गया Bhushan. Thank you. थैंक यू चंदू। जी तो बिल ने पहले पैरास में हमें ये समझाया कि हमारे जैसे प्रमोटर से बनी सोसाइटी की कल्पना भी डरावनी थी, और वो लिखा कि उसने कि हमें आत्म संयम का पालन करना होगा। अभी आगे लिखता है कि इस आत्म संयम का जो परिणाम मिला वो चकित कर देने वाला था।
इससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को इतनी अनुकूल प्रचार प्रसिद्धि मिली जितनी ए के सर्वश्रेष्ठ प्रेस एजेंट भी अपनी सारी कला और क्षमता से नहीं दिला सकते थे। यानी कि हम अगर किसी प्रोफेशनल्स की मदद लेते, कोई एड एजेंसी की या कोई कंसल्टेंट लगाते और उसको ढेर सारा पैसा देते, तो वो भी नाकाम रहता है। जितनी इस आत्म संयम का जो परिणाम मिला उसके कारण प्रसिद्धि हुई। तो इससे स्पष्ट था कि किसी न किसी तरह ए को तो सार्वजनिक होना ही था। इसलिए हमने यह विचार अपनाया कि हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हमारे मित्र ही यह काम करें, और ठीक ऐसा ही हुआ, वह भी अविश्वसनीय स्तर तक। अनुभवी समाचार पत्रकार जो स्वभाव से ही संदेहवादी होते हैं, ए का संदेश पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। उनके लिए हम सिर्फ अच्छी खबरों का स्रोत नहीं थे। लगभग हर समाचार मंच पर प्रेस के पुरुष और महिलाएं हमसे मित्रों की तरह जुड़ गए। आगे लिखता है कि शुरुआत में प्रेस हमारे द्वारा व्यक्तिगत प्रचार से इनकार को समझ नहीं सकी। हमारी अनामिकता पर हम जो जोर देखकर वे सचमुच उलझ गए थे। फिर उन्हें यह बात समझ में आ गई जो दुनिया में एक दुर्लभ चीज थी, एक ऐसा समाज जो यह कहता था कि हम अपने सिद्धांतों और अपने काम का प्रचार चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत सदस्यों का नहीं। प्रेस इस रवैये से प्रसन्न हुई। तब से अब तक इन मित्रों ने एक ही रिपोर्टिंग ऐसे उत्साह के साथ की है जिसकी बराबरी सबसे उत्साही सदस्यों के लिए भी कठिन होती है। यहाँ पे बिल तुलना करता है कि अगर ए का मेंबर ए के नाम के लिए जो पीआई काम करेगा, उससे कहीं गुना ज्यादा उत्साह जो प्रेस के रिपोर्टर थे वो दिखाने लग गए। एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका की प्रेस को ए की अनामिकता हमारे अपने कुछ सदस्यों भी अधिक महत्वपूर्ण लगी। यानी कि इसका परिणाम ये हुआ कि हमको अनामिकता का जो महत्व है उससे भी ज्यादा बिल कहता है कि अमेरिका की प्रेस को ए की अनामिकता का महत्व समझ में आया। एक चरण पर हमारे समाज के लगभग 100 सदस्य सार्वजनिक स्तर पर अपनी अनामिका तोड़ रहे थे, पूरी तरह अच्छी नीयत से। इन लोगों ने घोषणा की कि अनामिकता का सिद्धांत तो पुराना घोड़ा गाड़ी वाला सोच है जो केवल ए के शुरुआती दिनों में उपयुक्त थी। वे तो उनके मन में तो यह तय का था कि यदि ए आधुनिक प्रचार तकनीकों का उपयोग करे तो वह और तेज तथा दूर तक जा सकता है। ए का मैसेज। अब यहाँ पे बिल उदाहरण दे रहा है कि अपने ए के सभासद जो सोच रहे थे कि भैया ये 1935-40 नहीं, अभी 1950 आ गया है, 10-15 साल निकल गए हैं, ये घोड़ा गाड़ी वाला जमाना नहीं, अब तो मोटर कार वाला है। अनामिकता शुरू शुरू में ठीक थी, अभी क्या अनामिकता है। और ऐसे लोगों की 100 से ज्यादा संख्या थी जो अपनी अनामिकता तोड़कर हर जगह जाके खुलेपन से बोल रहे थे कि मैं ए का सभासद हूँ, रेडियो पे फिल्म पे आ रहे थे। यानी कि उन्होंने इस अनामिकता के तत्व को पुराने जमाने का समझते हुए और ए को आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज की तरह देखा। इसके लिए वो कहते थे ना कि अनामिकता का सिद्धांत तो पुराना घोड़ा गाड़ी वाली सोच है। अब उन्होंने यह भी कहा, बिल लिखता है आगे, कि ए में कई ऐसे लोग हैं जिनका स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। यदि वे तैयार हों, और कई थे, तो क्यों ना उनकी सदस्यता सार्वजनिक की जाए ताकि और लोग प्रेरित होकर हमसे साथ जुड़ जाएं। अब जो 100 से अधिक लोग, यानी कि वो गुट जो ऐसा सोचता था कि नहीं यार, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बॉलीवुड में सुपरस्टार हैं, जो पॉलिटिशियन सोबर हुए हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन सोबर हुए हैं, उनकी तो राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पहचान है।
उनका कहना यह भी था। अब बिल लिखता है, ये सुन के ये तर्क संभव लगते थे, लेकिन सौभाग्य से लेखन जगत के हमारे मित्र इससे सहमत नहीं हुए। देखिए बिल यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब इन्होंने प्रेस को बताया कि भाई हम अपनी संगठना के तत्वों को और काम को महत्व देना चाहते हैं, व्यक्तियों को नहीं, तो प्रेस बहुत आकर्षित हुई थी और खुश हुई थी। लेकिन जब ये 100 लोगों ने या कई लोगों ने ऐसा करके ये सब बातें करना चालू कर दिया, तभी बिल कहता है कि प्रेस वालों के हमारे मित्र इससे सहमत नहीं हुए। और फिर ऐसा जब हो रहा था तो तभी हमारा फाउंडेशन था अल्कोहलिक, तो फाउंडेशन ने उत्तरी अमेरिका के लगभग हर समाचार माध्यम को चिट्ठियां लिखी, जिनमें हमारा प्रचार नहीं आकर्षण वाली जनसंपर्क नीति बताई गई और अनामिकता के सिद्धांतों पर जोर दिया गया। तब से ये संपादकों और रीराइट करने वालों ने ए से संबंधित लेखों में सदस्यों के नाम और तस्वीरें हटानी शुरू कर दी, बार बार हटानी शुरू कर दी। उन्होंने महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को ए की अनामिकता की नीति की याद भी दिलाई। उन्होंने इस उद्देश्य से अच्छी खासी कहानियां तक प्रकाशन से निकाल दी। उनके इस सहयोग ने निश्चित ही बहुत मदद की है। अब बहुत कम ए सदस्य ऐसे बचे हैं जो जानबूझकर सार्वजनिक स्तर पर अपनी अनामिकता तोड़ते हैं। संक्षेप में इसी प्रक्रिया से ए की परंपरा 11 का निर्माण हुआ। लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ एक अच्छी जनसंपर्क नीति से कहीं अधिक है। यह सिर्फ स्वार्थ त्याग का सिद्धांत नहीं है। यह परंपरा लगातार और व्यावहारिक रूप से याद दिलाती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का ए में कोई स्थान नहीं है। इसमें हर सदस्य हमारी फेलोशिप का सक्रिय संरक्षक बन जाता है। तो बिल ये आखिरी के पैरा में इसको समाप्त करते हुए बताता है कि हमने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को स्थान नहीं दिया है। स्वार्थ त्याग का सिद्धांत की बात नहीं है। जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जो पहले कुछ लोगों का उदाहरण दे रहा था जो अमेरिका में अपने नाम और फोटो के साथ अपनी कहानियां लेके जाते थे न्यूज़पेपर वालों के साथ और उनको बताते थे कि मैं ऐसा था, अब मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया हूँ, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और उनका भी नियत अच्छी थी कि ए का प्रसार हो। लेकिन जब इन्होंने ये देखना शुरू किया तो बिल, पहले लगता है ना प्रमोटर की सोसाइटी का कल्पना भी डरावनी लगती थी। तो उस वक्त फाउंडेशन ने जब सब लोगों को पत्र लिखे और हमारी इस पॉलिसी के बारे में सबको बताना शुरू किया, तो बड़ा करिश्मा हुआ कि जो संपादक थे या जो पत्रकार थे, उन्होंने ही मेरे कोई ऐसे व्यक्तियों को जो अपनी अनामिकता भंग करके टीवी पर बोलना चाहते थे कि मैं ये मेंबर हूं, या न्यूज़पेपर में अपना फोटो, नाम, एड्रेस सब देना चाहते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि भाई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पॉलिसी ये नहीं है कि उसके मेंबर्स का फोटो भी छापो, नाम भी दो, सब कुछ। तुम्हारी पॉलिसी तो अनामिकता वाली है। तुम तो तत्वों की बात करने वाले लोग हो, और अगर आप तत्वों पे बात करेंगे तो हम कहानी छापेंगे, और तुम व्यक्तिगत बात बताना चाहते हो तो वो हम नहीं छापेंगे। तो इसका अगर समाप्त करें, भूषण तो आगे इसको लेके ही जाएगा, ये जो लिखा हुआ उसमें तो पॉइंटर्स ऐसे हैं कि ए का संदेश खुद आकर्षित करता है। अपने सदस्यों को आगे करके प्रचार नहीं करते। हमारा काम, हमारी सादगी और हमारी रिकवरी ही लोगों को आकर्षित करती है। ए का नाम चलता है, व्यक्तियों का नाम नहीं। व्यक्तिगत प्रसिद्धि ए को नुकसान पहुंचा सकती है। कोई सदस्य अगर टीवी अखबार में आकर कहे मैं ए में हूं, तो ए का पूरा नाम उस व्यक्ति की सफलता या असफलता से जुड़ जाएगा। यह ए की एकता और विश्वसनीयता के लिए खतरनाक है। अनामिकता ए का सुरक्षा कवच है।
अनियमितता हमें अहंकार से, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से, सितारा संस्कृति, स्टार रिकवरी बनने से, विवादों और आलोचना से बचाती है। और ये पॉलिसी की वजह से प्रेस और मीडिया ने हमारा सम्मान किया है कि ए का संदेश आगे आए, लेकिन ए का कोई सदस्य नहीं। ए का प्रचार उसके सिद्धांत करते हैं, उसके सदस्य नहीं। सार्वजनिक मंच पर सदस्य अनामिक रहते हैं, यही ए की शक्ति और सुरक्षा है। ओवर टू यू पुष्कर। तो आते हैं इस पे, बाद में आते हैं थोड़ा। यस, तो लकी ने काफी डिटेल में बात किया अबाउट 100 ऑफ आवर सोसाइटी। लार्जली ये हॉलीवुड एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, फेमस पर्सनालिटीज थे, जिनको ऐसे लगा था कि शुरुआत के दिनों में जो अनामिकता हम लोग पाल रहे थे, वो डर के वजह से पाल रहे थे कि लोगों को पता चल गया तो हमारे प्रोफेशन का क्या होगा। लेकिन हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, हम बड़े सितारे हैं, पूरी दुनिया हमको जानती है, हमें किसी बात का डर नहीं है, और अच्छे काम में डर किस बात का। इस हेतु इन्होंने ये बात की थी। लेकिन वो टाइम पे अनामिकता का ये जो दूसरा तत्व था कि अपने आप को संयम में रखना, अपने आप को रोक के रखना, ये तत्व वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, और लकी ने बाकी की कहानी बताई। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह था कि पर्सनल एनोनिमिटी ये एए का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन है। कैसे? तो जैसे मैंने कहा कि व्यक्तियां गलती कर सकती है, कितने भी साल के बाद में व्यक्ति के जीवन में अगर कोई उथल पुथल हो जाए और वो फिसल जाए, तो व्यक्तियां गलती कर सकती है, लेकिन तत्व गलती नहीं करते। हमारा लिटरेचर, हमारे तत्व, इनके बारे में जो प्रसार हुआ, अगर हम वो फेज को देखते हैं, 1941 में लगभग हम लोग 2000 सदस्य थे, और 1950 में हम लोग 1 लाख सदस्य थे। यानी 10 साल में हम लोग 2000 से 1 लाख तक चले गए। ऑब्वियसली ये जो ट्रेडिशंस लिखने का जो दौर था, ये पीरियड में एए का बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। तो कई सारे सदस्य ये बढ़ोतरी होते समय फेल भी हो रहे थे, कई सारे ग्रुपों में झगड़े भी हो रहे थे, कई सारे ग्रुप्स बंद भी हो रहे थे। बट जितने लोग फेल हो रहे थे, उनसे कई गुना ज्यादा मात्रा में लोग सोबर हो रहे थे। जितने ग्रुप्स बंद हो रहे थे, उससे कई ज्यादा मात्रा में नए ग्रुप्स खुल रहे थे। और ये पूरा मीडिया जो है, पूरे वर्तमान पत्र, रेडियो स्टेशन, ये सभी लोग ये सामने, उनकी आंखों के सामने ये होते हुए देख रहे थे कि ये एक नया आविष्कार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप, इनके तत्व, इनकी ह्यूमिलिटी, इनका लोगों के सामने नहीं आना, उनका खुद ही के पैसे में जितना भी होता है उसी में चलाने का प्रयास करना, बाहर से मदद नहीं लेना, किसी के साथ में न जुड़ना, ये सभी जो आध्यात्मिक तत्व जो थे, ये आध्यात्मिक तत्व सभी हमारे जो मित्र वर्ग था, इन्होंने बहुत बढ़िया हमारी बातें की। इनफैक्ट आप लोगों को सभी को पता होगा कि 1940 में जैक अलेक्जेंडर को जब सैटरडे इवनिंग पोस्ट ने हमारे बीच भेजा था, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। वो आए थे हमारा पर्दाफाश करने हेतु। उनको ऐसे लगा था कि ये डेफिनेटली कुछ झोल होगा, ये शराबियों का कुछ नया नाटक होगा, और ये इसका पर्दाफाश करना ये जरूरी है। इस हेतु वो हमको पूरा इन्वेस्टिगेशन के हेतु वो आए थे हमारे को जानने के लिए। लेकिन जब ही उन्होंने सभी सदस्यों से बात किया, मीटिंग्स अटेंड की, और अपने आंखों के सामने उन्होंने ये
जो एक समय पर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हुए शराबियों को अभी एक आध्यात्मिक जीवन और एक उपयुक्त जीवन जीते देखा, तो वो खुद अपने बहुत बढ़िया चहेते हो गए। इनफैक्ट ये जो किताब है 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन, ये किताब के एडिटिंग में भी जैक अलेक्जेंडर का हाथ रहा है। तो इतना वो हमारे करीब आ गए थे। तो जब ही हम लिख रहे थे, सभी ये वर्तमान पत्रों को लिख रहे थे, क्या हमारा हेतु ये नहीं है कि हम डर से छुपे रहे। हमारा ये हेतु है कि किसी चेहरे के साथ एए के तत्वों को ना जोड़ा जाए, एए के तत्वों को अलग से पहचाना जाए, और व्यक्तिगत रूप से हमारा सभी का निनावी रहना, अनामिक रहना, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सभी वर्तमान पत्रों ने, सभी मीडिया ने पूरे शिद्दत से मान ली, और हमारे प्रति उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। और बिल डब्ल्यू जो कहता है कि पर्सनल एम्बिशन हैज नो प्लेस इन ए। दोस्तों, जब भी हमारी खुद की सोब्राइटी हो जाती है, हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, घर में इज्जत प्राप्त हो जाती है, और इतने सालों से हम लोग प्रतिष्ठा के भूखे, पैसे के भूखे, प्यार के भूखे, अब हमारे हाथ में जब ये आ जाता है, तो हमारा अपने आप के ऊपर संयम नहीं रहता है, और हम और चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऊंचाई के शिखर तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारा नाम अखबारों में छपे, हम ढेर सारा पैसा कमाएं, और वो सभी जो बुराई के, जो अंधकार के जो दिन थे, उसी का एग्जैक्टली अपोजिट, यानी हमारा सक्सेस ये होना चाहिए। और इससे हमारे अंदर एक छुपी हुई एक एम्बिशन जाग जाती है, और ये जो जागने वाली जो एम्बिशन है, वो हमें अंधा बना देती है, और फिर हमें ऐसे लगने लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं, मैं ये पूरे ए को बदल दूंगा, मैं ये पुराने ख्यालात को बदल दूंगा, मैं बढ़िया से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समाज के सामने ले आऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले मैं किसी और एनजीओ के साथ में भी जुड़ा हुआ हूं, और वहां के पॉडकास्ट कर रहा था, और जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, उनको जब भी मैंने एए के बारे में बताया, और उन्होंने जब भी मुझे बोला कि आप ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम करते हो, इसके जो आप पॉडकास्ट बनाइए, और आपका हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर करेंगे। अरे मैं बोला, नहीं होता ये सब, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अनामिकता का ये है, मैं ए सदस्य करके ये सब चीजें नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ए मेंबर करके नहीं करें, आप एक समाज सेवक करके करें, या एक रोटेरियन करके करें, या एक इस विषय की समझ होने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में करिए। आपकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सदस्यता लगाने से अनामिकता अप्लाई होती है। आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र ना करें तो सदस्यता, ये अनामिकता आपको अप्लाई नहीं होगी। भले टेक्निकली ये बात सही भी होगी, फिर भी मैंने उनको ये बोला कि शायद आप बोल रहे हो ये बात सही है, शायद ये टेक्निकली मैं सही भी करूंगा, लेकिन मेरे जो हजारों एए के भाई हैं, इनको ये बात मैं कभी समझा नहीं पाऊंगा कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये अपने व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं, और आज ए मेंबर नहीं कर रहा हूं, या ए का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, फिर भी ए के तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं। इसके लिए ये ठीक है, ये अनामिकता का भंग नहीं है। ये समय टेक्निकलिटीज का नहीं है, ये समय इस आध्यात्मिक तत्व को अपने जीवन में उतारने का है। तो ये सभी जो है, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। मैं अगर इन तत्वों का पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करता हूं, तो वो मेरी आध्यात्मिकता के साथ में वो सैक्रिफाइस मुझे लगता है। बट इसका मतलब ये है क्या कि लोग नहीं कर सकते? तो यही समय है समझने का कि अनामिकता में क्या है और क्या नहीं है।
जैसे कि कई सारे लोग सोचते हैं कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप के अंदर भी मैंने मेरा पूरा नाम नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों, एए के अंदर मैंने अपनी अनामिकता कितनी रखनी है या नहीं रखनी है, ये मेरा वैयक्तिक मामला है। लेकिन एज फार एज पॉसिबल एए के मेरे समूह में, मेरे होम ग्रुप में मैंने अनामिकता नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि कल अगर मैं किसी मुसीबत में फंसा, या मैं कहीं पीकर गिर गया, या कहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे ए मेंबर्स को अगर मेरा नाम तक पता नहीं है, तो वो मुझे मदद कैसे करेंगे? ये जो अनामिकता का तत्व है, ये अनामिकता का तत्व एट द लेवल ऑफ रेडियो, टीवी, प्रेस और अभी इंटरनेट को उसमें जोड़ा जाता है, इस लेवल पर है। एए के अंदर हमें अनामिक रहने को नहीं कहा है। तो एए के अंदर मैं अगर मेरा पूरा नाम बताता हूं, तो ये अनामिकता का भंग नहीं होता। उसी तरह से अगर मैं, मेरे समाज में कोई मीटिंग है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, और वहां पर स्टेज पर जाकर अपनी शराबियत के बारे में बात करता हूं, तो ये भी अनामिकता का भंग नहीं होता। क्योंकि ये मैं मेरे समाज को, जहां मैं रहता हूं, अगर मेरे नेबर्स को, मेरे संबंधियों को, मेरे रिश्तेदारों को ही मेरे रिकवरी के बारे में पता नहीं है, मेरे बीमारी और उसके बाहर निकलने के तरीके के बारे में पता नहीं है, तो मैं एए का काम जो है वो पीड़ितों तक पहुंचा कैसे सकूंगा? तो समाज में जब भी मैं अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बात करता हूं, या मेरे रिश्तेदारों में, या मेरे जहां मैं काम करता हूं, वहां पर मैंने अपनी अनामिकता रखनी है या नहीं रखना है, ये भी पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय होता है। इसे अनामिकता का भंग नहीं कहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे व्यक्ति का अनामिकता भंग करूं। अगर मैं लकी के ऑफिस में जाता हूं और लकी के स्टाफ को, अरे तुम्हारा बॉस तो शराबी है, इस प्रकार से बोलता हूं, तो ये मैं दूसरे की अनामिकता भंग कर रहा हूं, और ये करने का मुझे अधिकार नहीं है। मैंने अपनी अनामिकता कितनी रखनी, ये मेरा मुद्दा है, लेकिन दूसरे की अनामिकता मैंने 100% रखनी है। तो अगर मुझे रास्ते पे कहीं लकी मिला, जहां वो उसके क्लाइंट्स के साथ में है, या मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ में हूं, और हम दोनों अगर करीब से मिले भी, एक दूसरे के गले भी लगे, और लोगों ने पूछा अरे कौन था ये, तो मैं उसे ए मेंबर करके पहचान नहीं करवा के दूंगा। मैं उसे, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, मेरा फैमिली फ्रेंड है, या बचपन का दोस्त है, इस प्रकार से मैं उसको पहचान करा के दूंगा। तो अनामिकता औरों की मुझे 100% रखनी है, अपनी अनामिकता अपने समाज में कितनी रखनी है, ये मेरा व्यक्तिगत चॉइस होता है। अभी हम में से कई सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अल्कोहलिज्म की फील्ड में काम करते हैं। जैसे हमारे एक मित्र है जो गुजरात में एक रिहैब सेंटर में काम करते हैं। एक दिन उनका मुझे फोन आया कि हमारे रिहैब सेंटर का पॉडकास्ट है, और वो बोल रहे कि आप 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है, इसके बारे में आप पॉडकास्ट करो, तो ये मैं कर सकता हूं क्या? तो मैंने उनको वही बताया कि व्यक्तिगत रूप से जब तक आप आपकी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सदस्यता व्यक्त नहीं करते हो, तब तक आप किसी भी मुद्दे पर टीवी पे, रेडियो पे बात कर सकते हो। अगर आप ऑन बिहाफ ऑफ रिहैब सेंटर बात कर रहे हो, आप जिस सेंटर के लिए नौकरी करते हो, सेंटर के तत्वों के या पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हो, और उस चक्कर में आप कौन सा प्रोग्राम वहां पर फॉलो करते हो, इस संदर्भ में अगर आप 12 स्टेप्स के बारे में बात करते हो, तो आप जरूर इनका जिक्र कर सकते हो। और 12 स्टेप्स का जिक्र करना, इसका मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र करना नहीं है, क्योंकि 12 स्टेप्स के ऊपर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कोई रॉयल्टी या पेटेंट नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में है, ये सभी की कोई भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। जैसे 100 से ज्यादा अन्य फेलोशिप्स है जो इन 12 पायरी का इस्तेमाल करते हैं,
और कोई भी समाज में कल अगर नया कोई कार्यक्रम आता है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए 12 पाहिरी यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा नहीं है, तो इसके ऊपर आप बात कर सकते हो। तो आप रिहैब सेंटर करके या हॉस्पिटल करके या साइकियाट्रिस्ट करके या साइकोलॉजिस्ट करके या साइकियाट्रिस्ट के एम्प्लॉय करके या एनीवन इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म के हेतु आप किसी भी विषय पर आपका पूरा नाम चेहरा दिखाकर बात कर सकते हो। जब तक आप अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सदस्यता व्यक्त नहीं करते हो तब तक आपको अनामिकता का बंधन लगता नहीं है। तो फिर अगला मुद्दा आता है एनोनिमिटी एट द लेवल ऑफ इंटरनेट। दोस्तों, जब ये ट्रेडिशन आई उन दिनों तो इंटरनेट ही नहीं था। इंटरनेट आया ही 2000 साल से ही इसका प्रचलित हो गया। इनफैक्ट 2000 साल में हमारे जीएसओ न्यूयॉर्क का पहला डिजिटल ऑफिसर अपॉइंट हुआ कि ईमेल्स के ऊपर और मैसेजेस जाना वगैरह वगैरह ये सब शुरुआत हो गया। तो अनामिकता इंटरनेट पे किस तरीके से की जा सकती है? आप सभी जानते हो कि अभी हम लोग एक जूम प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूं, तो मैं अपना चेहरा दिखा भी सकता हूं क्योंकि यहाँ इस मीटिंग में जो भी उपलब्ध है वो सभी लोग एए सदस्य ही है और ये क्लोज्ड मीटिंग है। ये मीटिंग में कोई भी पत्रकार नहीं है या रेडियो टेलीविजन का कोई यहाँ से प्रवक्ता नहीं है जो ये इंफॉर्मेशन को बाहर मीडिया में लीक करे। तो ये क्लोज मीटिंग है जहां पर मैं अपने आप को मेरा चेहरा भी दिखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एए सदस्यों के भीतर ही है। आज बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है या हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रही है। अभी हाइब्रिड फॉर्मेट यानी क्या? तो जहां पर एक फिजिकल मीटिंग है वहां पर स्क्रीन लगा हुआ है और वहां पर वो मेंबर का शेयरिंग रिकॉर्ड हो रहा है और बाकी लोग उसे देख रहे हैं और बाकी लोग कहीं और से बोल रहे हैं और वहां पर हम लोग यहाँ पर उसको स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा चेहरा कोई देख रहा है या मेरा शेयरिंग कोई सुन रहा है, एज लॉन्ग एज ये पूरी तरह से एए मेंबर्स ही सुन रहे हैं और एए मेंबर्स ही देख रहे हैं, तब तक ये अनामिकता का ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर कल मैं फेसबुक लाइव पर मेरा शेयरिंग करना चालू करूं या यूट्यूब पे मैं ब्रॉडकास्ट करूं मेरे चेहरे के साथ में, जहां पूरा समाज उसे देख सके, बाहर की दुनिया देख सके, तो ये अनामिकता का भंग होगा। इसका मतलब पब्लिक मीडिया जहां पर भी पब्लिक के सामने वायरल होने की या लार्ज स्केल पॉपुलैरिटी, जैसे आप देखते हो कि कई पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं जो बहुत पॉपुलर बन चुके हैं, तो ये इस प्रकार से मैं अपनी एए सदस्यता का इस्तेमाल करके अगर अपना पॉडकास्ट कर रहा हूं तो वो अनामिकता का जरूर भंग होगा। या अगर एक मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग में कोई सामने बैठ के मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, तो वो अनामिकता का भंग है क्या? तो वो अनामिकता का भंग नहीं है अगर वो रिकॉर्डिंग वो खुद ही के पास रखे, लेकिन कल जाके वो अगर उसके फेसबुक पे डाल दे या उसके यूट्यूब पे डाल दे तो ये डेफिनेटली अनामिकता का भंग होगा। लेकिन ये अनामिकता का भंग है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन ये प्राइवेसी का जरूर भंग है। अगर वो मेरा शेयरिंग, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसने मेरी परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एए के प्लेटफॉर्म पर जब भी शेयरिंग करते हैं तो हम लोग कई बार इंटेंस और इंटीमेट शेयरिंग करते हैं जिसमें शायद मैं कुछ ऐसी चीजें बोल दूं और आपके पास अगर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है तो कल ये लीगली मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसा अगर हो जाए तो इस वजह से ये प्राइवेसी का भी ब्रेक होगा। ये सिर्फ अनामिकता का नहीं लेकिन ये प्राइवेसी लॉस का भी ब्रेक हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के परमिशन के बगैर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग तो 100% नहीं, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करना हो तो उसकी परमिशन लेके किया जाए। इसी को लेकर एक आगे जाके और पॉलिसी बनी कि जो
कन्वेंशंस होती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वहां पर तो एए ही मेंबर्स होते हैं और एए के ही मेंबर शेयर करते हैं। लेकिन फिर भी ये एए कन्वेंशन में किसी भी प्रकार का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना ये प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक दफा लोगों के हाथ में गया, फिर अनामिकता का समझ किसको कितना है और वो कौन से तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म पे कब रिलीज होगा, ये हमारा किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। इसके लिए आमतौर पर किसी भी पब्लिक एए मीटिंग या कन्वेंशन या प्रोग्राम या सेमिनार का वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे रिलीज करना ये वर्जित किया गया है। इसीलिए जब भी हम लोग ये शेयरिंग्स, हमारी ये जो मीटिंग चलती है जूम मीटिंग की, इसकी जो शेयरिंग्स है ये यूट्यूब पे अपलोड जरूर होती है, लेकिन वो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में होती है। और इसीलिए हम लोग हमारा यहाँ पर पूरा नाम नहीं बोलते, हम सिर्फ अपना पहला नाम बताते हैं, और हम लोग जो वीडियो है भले हम लोग देख भी सके तो भी रिलीज जब भी होता है तो सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट में ही होता है। तो ये सब इसके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि अनामिकता की अगर सही समझ नहीं होगी तो हम लोग उसको डर कर इतने अनामिक बन जाएंगे कि हमारे समाज के भी काम नहीं आएंगे, किसी के मदद भी नहीं आएंगे, या हम ज्यादा डर गए तो हम ये सोशल मीडिया या ये जो नए नए ऐप्स है, नई नई टेक्नोलॉजी है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हमें सही समझ होना जरूरी है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। रही बात डेथ नोटिसेस की, अगर कोई हमारा सदस्य दिवंगत हो जाता है, मृत हो जाता है, और उसका अगर फैमिली उसको अगर पेपर में डालना चाहता है, तो वो उसकी अनामिकता रखना है या नहीं रखना है वो उसके फैमिली के ऊपर दिया गया है। जैसे अगर मेरी फैमिली मेरे पश्चात लिखना चाहे कि ये एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रेटफुल मेंबर थे, और तो मेरे मरने के बाद में मेरी फैमिली डेथ नोटिस में मेरा नाम जिक्र कर सकती है, लेकिन वो मेरे साथ में बाकी रिवाइवर समूह के बाकी सदस्य अमुक तमुक तमुक लकी ये नाम ऐसे बाकी लोगों के नाम नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक रेजोल्यूशन हमारे कॉन्फ्रेंस बायलॉज में किया गया था कि लोगों को समझ में आए कि ये हमारा सदस्य था, इसके लिए ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों की अनामिकता का भंग किए बगैर हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये एक पैम्पलेट का अंडरस्टैंडिंग एनोनिमिटी नाम का हमारा एक पैम्पलेट है। जो लोगों को इस विषय में अधिक जानकारी चाहिए, एनोनिमिटी पर दो तीन अच्छे खासे पैम्पलेट है। इंटरनेट एनोनिमिटी के ऊपर भी उसमें जिक्र किया हुआ है। ये जो एक टुकड़ा है मैं इसमें से बोलना चाहूंगा। As presented in the pamphlet Understanding Anonymity regarding anonymity online, the collective conscience of the AA Fellowship as expressed through the conference approved literature suggests, यानी अंडरस्टैंडिंग एनोनिमिटी ये हमारा जो पैम्फलेट है उसमें इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन की एनोनिमिटी के बारे में हमारे पूरे फेलोशिप का जो कॉन्शियस हमारे कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर से जो व्यक्त होता है, वो कहता है कि पब्लिकली एक्सेसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट, यानी जहां पर दुनिया देख सकती है ऐसा जो भी इंटरनेट का एस्पेक्ट है, जैसे कि वेबसाइट फीचरिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ought to be considered another form of public media। यानी कि जहां पर भी लार्ज नंबर में लोग हमें देख सकते हैं उसे हम लोग पब्लिक मीडिया करके ही ट्रीट करेंगे, यानी टीवी, रेडियो और पेपर के बराबरी से ही ट्रीट करेंगे। Thus, they need to be treated in the same manner as press, radio and TV and films। This means that full names and faces should not be used। However, the level of anonymity in email, online meetings and chat rooms would be a personal decision। इसका मतलब मैं मेरी ईमेल भेजता हूं लोगों को और उसमें अगर नीचे AA रिवाइवर ग्रुप मेरे नाम के नीचे डालता हूं
और मैं ये किसी परमिशन के लिए या कहीं कहीं पर भेजता हूँ, या ट्रस्टी लोग जब भी हमारी मेल भेजते हैं कि रिक्वेस्टिंग परमिशन और रिक्वेस्टिंग एनीथिंग, तो वहां पर ट्रस्टी अल्कोहलिक्स एनोनिमस जनरल सर्विस बोर्ड ये लिख सकते हैं। और ऑनलाइन मीटिंग में मैंने मेरा चेहरा दिखाना या नहीं दिखाना, चैट रूम्स में मैंने कितना अनामिकता रखना, ये मेरा वैयक्तिक निर्णय है। तो ये क्लियर कट गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अनामिकता इस विषय में जितना भी उसके अलग अलग अंग है उनको सामने आपके रखने का प्रयास हमने किया हुआ है। लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ सवाल हो गए या कुछ ना कुछ ऐसे भी अनुभव बाकी लोगों के पास होंगे जहां पर अनामिकता को लेकर मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो हम लोग ये सवाल या वो शेयरिंग्स डेफिनेटली ले सकते हैं। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है या कोई भी शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। द रूम इज ओपन। अपना हाथ उठाइए या अनम्यूट करके अपनी बातें भी चंदू भाई, मैं मनीष भाई बोलता हूँ। हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल था। पूछिए हेलो, बोलिए ना मनीष भाई। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ जी, हाँ भूषण भाई, अभी जो मेरा मम्मी है, तो अभी वो कहीं, हम 2 मेंबर है, तो अभी कहाँ भी जा रही है ना, मतलब मेरी दारू छूट गई, 10 साल हो गया भूषण भाई। तो वो क्या है, 5-10 बहरे के बीच में भी बोल लेती है मेरे मिन्ना के साथ, मतलब मेरा नाम मनीष भाई, वो मेरे को मुन्ना बोलती है। तो उधर बोल देती है कि जा उसके साथ मीटिंग में जा, वो तुम्हारी दारू भी छूट जाएगी। तो फिर ये प्रॉब्लम रहेगा मेरे को। तो बताइए आप, ये अनामिकता का ब्रेक है क्या? हाँ, आपके मेरे ख्याल से तो जो मैसेज मिला मेरी माँ के थ्रू, तो मैं तो उसको ले जाऊंगा मीटिंग में। बराबर। तो तो आपके फिर समाज में आपका अनामिक रहना ये भी वायलेशन ऑफ ट्रेडिशन है, ऐसा डॉक्टर बॉब ने कहा हुआ है। जहां आप हाँ हाँ रहते हो, जिस समाज में आप रहते हो, वहां पर हाँ आप हाँ रिकवरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी तरीके हाँ से हाँ लोगों को पता चलेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करता है, और उसी तरीके से हम्म, आपके पास बाकी नाम आएंगे और आप उनको मीटिंग में ला सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, बराबर। ओके, चलो। दोस्तों, ओके। कोई और शेयरिंग करना चाहता है या सवाल है किसी का? अगर नहीं है तो मैं क्विकली ट्रेडिशन चेकलिस्ट के सवाल ले सकता हूँ। हाँ, वो बेटर क्वेश्चन। प्लीज गो अहेड। आकाश, ओके, हाँ जी, मेरा एक सवाल है। बोलिए। पूछिए आकाश। जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, मैं एक शराबी हूँ। जैसे कि अभी भूषण जी ने बताया कि उन्हें पॉडकास्ट में बुलाया गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में या फिर बीमारी के बारे में बताने के लिए। तो फिर जैसे कि सत्यमेव जयते में हमने देखा है कि एक मेंबर वहां पर गए थे और उन्हें ब्लर कर दिया गया था। तो क्या फिर हम पॉडकास्ट में जाकर या फिर अपना मैसेज जहाँ पर भी दे रहे हैं, क्या फिर वहां पर ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जहां पर आपका चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हो या पूरा नाम नहीं दे, तो वो कर सकते हैं आप। जी जी, ठीक, थैंक यू। तो ऐसे कई सारे शोज होते हैं जहां मेंबर को अंधेरे में रखा जाता है, जहां चेहरा क्लियरली दिखाई न दे या आइडेंटिफाई न कर सके। मेन आइडिया ये है कि किसी ने अपनी एए सदस्यता का अपने पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यस, ओके ओके। चलो क्विकली सवाल देख लेते हैं ट्रेडिशन चेकलिस्ट के। पहला सवाल ये है, डू आई समटाइम्स प्रमोट एए सो फ्रेंटिकली दैट आई माइट मेक इट सीम अनअट्रैक्टिव?
कभी कभी मैं एए के बारे में इतनी बातें करता हूँ, इतने लोगों से बात करता हूँ कि लोग बोलते हैं, अरे बस कर यार, तेरी अभी एए की बकवास अभी बंद कर। इतना करता हूँ क्या मैं? तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपने आप के ऊपर रोक लगानी चाहिए। खाली मैं पब्लिक मीडिया में ही अपने आप को प्रमोट करने का कोशिश करता हूँ, ऐसे नहीं है। मैं अपने समाज में भी जरा अपने को इम्पोर्टेंस मिलता है, जरा लोग अपनी तारीफ करते कि अरे ये अच्छा काम करता है, तो हम अपने आप के बारे में बात करने से बाद नहीं आते, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। हमारा प्रोग्राम और हमारी आध्यात्मिकता और हमारी रिकवरी और मैं सबको ठीक कर दूंगा, इस टाइप का बोस्टफुल नेचर हमारा कभी कभी अपने समाज में भी हो जाता है। तो ये एक आध्यात्मिक तत्व है अपने आप को संयम में रखने के लिए, तो ये पॉइंट उस तरफ हमें लीड करता है। दूसरा सवाल है, am I always careful to keep the confidences shared with me as an A member? अनामिकता जब दूसरे सदस्य की बात करते हैं हम लोग, तो खाली उसका नाम नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ में अगर कुछ अनुभव कथन किया है तो वो भी मैं उसे गुप्त रखता हूं क्या? अगर लकी ने मेरे साथ में आकर कुछ उसका इंटीमेट या एम्बैरेसिंग अनुभव शेयर किया है, तो स्पॉन्सर होने के नाते या उसका अच्छा मित्र होने के नाते उसका वो जो गुपित है, उसका जो वो सीक्रेट है, वो मैं अपने आप ही तक रखूं और उसका गॉसिप करके लोगों तक न फैलाने का काम जो है, वो भी अनामिकता का ही तत्व है। क्या मैं उसे समझता हूं? तीसरा सवाल यह है, am I careful about throwing A members names around even within the fellowship? हमारे बीच में कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जब ये आती है, तो क्या मैं नए मेंबर को इम्प्रेस करने के लिए बोलता हूँ, अरे तेरे को मालूम है ये भी मेंबर है और वो भी मेंबर है, अरे हमारे पास बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन मेंबर है, हमारे पास में पुलिस कमिश्नर मेंबर है, जज मेंबर है, लॉयर मेंबर है, सीए मेंबर है। इस टाइप की बातें हम लोग करते हैं क्या? और नाम लेके बात करते हैं क्या? ये अगर मैं कर रहा हूं तो वो व्यक्तियों की अनामिकता में भंग कर रहा हूं। चौथा सवाल यह है, एम आई अशेम्ड ऑफ बीइंग अ रिकवर्ड और रिकवरिंग अल्कोहलिक? तो क्या मैं अपने आप को रिकवरिंग अल्कोहलिक या रिकवर्ड अल्कोहलिक बोलने से मुझे शर्म लगती है? अभी भी कई सालों के सोब्राइटी के बाद मेरे अगल बगल में मेरे नेबर्स को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता उनको कि मैं ये में जाता हूँ या मैं रिकवर्ड अल्कोहलिक हूँ। क्या अभी भी मुझे शर्म लगती है अपने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सदस्यता की? क्योंकि अभी वो शर्म में से मुझे मुक्त होना चाहिए। यानी अगर मैंने छत के ऊपर जाके चिल्ला नहीं रहा हूं, तो मैंने छुप के बैठने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम मेरे अगल बगल में सबके मेरे पहचान वालों में पता तो होना चाहिए। पांचवा सवाल यह है, व्हाट वुड AA बी लाइक इफ वी वर नॉट गाइडेड बाय द आइडियाज इन ट्रेडिशन 11? वेयर वुड आई बी? अगर ये ट्रेडिशन नहीं होती तो हम सब लोगों ने AA का क्या किया होता? हम सब लोग अपने अपने चेहरे प्रमोट करने के लिए टीवी पे यहाँ वहां पर कूदते और फिर फेल होते, तो फिर आज मैं कहाँ होता? ये रिफ्लेक्ट करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए पॉइंट दिया है। छठा सवाल है, एम आई केयरफुल नॉट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ और अदर्स एज मेंबर्स ऑफ ए व्हेन आई पोस्ट सर्टन थिंग्स ऑन सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा? तो जब भी मैं कोई फोटो पोस्ट करता हूं फेसबुक में, भले मेरे AA दोस्तों के साथ में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी पीछे AA का जिक्र या बैनर या नाम दिख रहा होगा, तो ये अनामिकता का भंग जरूर होगा। तो इसीलिए जब भी मैं AA मेंबर्स की फोटो लेता हूं, तो ख्याल ये रहे कि जब भी वो स्टेज पे बोल रहा है और उसके पीछे बड़ा बैनर है, ऐसा फोटो ना ले, और लिया है तो वो पोस्ट ना करे। अगर पोस्ट करने वाला जो फोटो है उसमें कहीं पर भी AA का नाम या AA का जिक्र नहीं है, इसका मुझे ख्याल रखना है, खास करके सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टा। सातवां सवाल है,
Is my AA sobriety attractive enough that a sick drunk would want such a quality for himself? तो क्या आज मेरा जीवन, मेरा चरित्र, मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोग मेरे तरफ खींचे चले आए? हम सभी का ये अनुभव है कि कोई ना कोई समाज में से आता है, अरे जरा भाई साहब मेरे भाई को मदद करिए, मेरे बेटे को मदद करिए, मेरे पिता को मदद करिए। इस टाइप के बहुत सारे लोग हमारे को आके बात करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन है, क्या मेरे वैयक्तिक स्टोरी में, वैयक्तिक जीवन में मेरी सोब्राइटी अट्रैक्टिव बन चुकी है मेरे समाज में? और 8वां और अंतिम सवाल ये है, इफ माई ग्रुप has its own website, have we considered this tradition when we designed it? How accessible it is and the type of content that it offers? आज हमारे यहाँ तो हमारे जीएसओ की वेबसाइट है, हमारे कई सारे अंतर समूहों की वेबसाइट है। अभी तक हमारे यहाँ पर ज्यादा कोई ग्रुप्स की वेबसाइट हो ये मैंने नहीं देखा है। लेकिन अगर अमेरिका वगैरह में आप जाओगे तो वहां पर हर एक ग्रुप की भी वेबसाइट आपको देखने को मिलती है। तो अगर मेरे ग्रुप की वेबसाइट बन रही है तो वहां पर वो ट्रेडिशन को डिजाइन, ये ट्रेडिशन को मध्य रखते हुए मैंने डिजाइन की है कि नहीं, वहां वैयक्तिक लोगों के पूरे नाम नहीं है या चेहरे नहीं है, इसका मैंने ख्याल रखा है कि नहीं। फोटो के लिए मेरे लिटरेचर के फोटो में, हमारे ऑफिसेस की फोटो, ये सब चीजें चल सकती है, लेकिन हमारे किसी सदस्य का फोटो नहीं होना चाहिए, ये मैं समझता हूं क्या। तो ये ट्रेडिशन की मेरी समझ ये कहाँ काम आती है? व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग विद अदर्स। जब समाज में मैं एए का काम करना शुरू करता हूँ, एए के बारे में बात करना शुरू करता हूँ, एए के बारे में लिखना या बोलना शुरू करता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बोलना शुरू करता हूँ, वहां पर इस ट्रेडिशन का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। तो जो लोग सर्विस में आते हैं, सामान्य सेवा में आते हैं, उनको इस ट्रेडिशन का खास महत्व रखना पड़ता है। जो अपनी अपनी सोबराइटी, अपना अपना रिकवरी और ये लेके बैठे हुए, उनको ये ट्रेडिशन का ज्यादा संबंध नहीं आता है। तो ये रहे कुछ सवाल, इस ट्रेडिशन के चेकलिस्ट के सवाल। और अभी इसके आगे किसी को कुछ शेयर करना हो या सवाल पूछने हो तो जरूर हम ले सकते हैं। ठीक, 15 मिनट बाकी है। हाँ, the floor is open. अनामिकता के बारे में मैं हमेशा एक अनुभव शेयर करता हूं। मैं नया नया सोबर हुआ था, साल भर हुआ होगा, और मैं मेरा जॉब चेंज करके एक नई नौकरी में लग गया। और वो कंपनी में वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट था। वो कंपनी में मैं मैनेजर करके, जनरल मैनेजर करके ज्वाइन हुआ, और हमारे सब मैनेजमेंट के ऑफिसेस फर्स्ट फ्लोर पे हुआ करते थे, और सब मशीनरी, सब जो शॉप फ्लोर था वो सब नीचे था। और हम सबको जो वॉशरूम्स थे जो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो हम सबको वो शॉप फ्लोर पे से जाना पड़ता था। शायद उस कंपनी में कोई ए मेंबर वर्कर था, और जब भी मैं वो पैसेज में से जाता तो वहां से एक कोने में से हमेशा कोई ना कोई चिल्लाता, ए बेवड़ा। मैं समझ गया कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई ए मेंबर है, और उसको अनामिकता का शायद समझ नहीं है, और मेरे को बेवड़ा बोल के या बाकी लोगों को मेरे शराबियत के बारे में बता के वो ये ट्रेडिशन का भंग कर रहा है, ये मैं समझ गया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। कुछ 3-4 दिनों के बाद में मैं एक दिन वहां रुका, और जिस दिशा में से आवाज आया वहां पर कुछ 8-10 लोग काम कर रहे थे। वहां पर मैं गया और मैं वहां खड़ा रह के उनको बोला, आई एम
मैं जानता हूं कि आप में से कोई ना कोई शायद अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य है और जो मुझे जानता है, और अगर वो जानता है तो वो ये भी जानता होगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम में ही एनोनिमस है, यानी अनामिक मद्यपी, हमारे नाम में ही अनामिकता है। और हम भले खुद की अनामिकता ना रखें, लेकिन दूसरे की अनामिकता हमें 100% रखनी है। तो अगर आप ये इसी प्रकार से बात करते रहोगे तो शायद कल मेरा नाम यहाँ खराब हो जाएगा, तो मैं तो नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आप जिस कार्यक्रम का हिस्सा हो, आप अपने आप को किस प्रकार से चेहरा दिखा पाओगे। खैर, मैं बोल के निकल गया। दूसरे दिन कुछ 3-4 जन आए, उन्होंने, उनमें से कौन मेंबर है वो उन्होंने नहीं बताया एग्जैक्टली, लेकिन बोले नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ऐसा है, हमको एक्सीडेंटली उन्होंने पहचाना आपको, हमारे से मेंबर है, उन्होंने पहचाना और वो बोल दिया अरे ये तो हमारा ये मेंबर है, ये में आता है। और वो हम लोग ने वो मजाक मजाक में किया, लेकिन सॉरी, हम लोग का ये बोलने का कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद में मैं उस कंपनी में लगभग 3 साल था, लेकिन वापस इस बात का कभी जिक्र नहीं हुआ। तो कई बार हम जाने अनजाने में किसी व्यक्ति की अनामिकता को भंग कर देते हैं, उसका डैमेज क्या होगा इसका हमें एहसास नहीं होता है। मुझे याद है, मैं नया नया मेंबर था, तब हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में एक बहुत सीनियर पोजीशन में काम करने वाले, डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे काम करने वाले हमारे एक मेंबर थे। उनकी वजह से हमेशा हमें टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े आर्टिकल छप के आते थे, हमारी स्टोरी छप के आती थी। और ऐसे ही हम में से कुछ नासमझ लोग उनको ऑफिस में मिलने को गए, और उनके कुछ मीटिंग चल रही थी वहां पर, और वहां पर जाके इन्होंने ऐसे ही अनामिकता का उनका भंग किया, और वो उसे इतना वो डिस्टर्ब हो गए कि उसके बाद में दोबारा वापस कभी वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आए। तो उनका नुकसान हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये नासमझी की वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत बड़ा नुकसान होते मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। क्योंकि उसके बाद में हमको वापस टाइम्स ऑफ इंडिया में उस तरीके का कभी फ्रेंड हम दूसरा बना नहीं पाए दोस्तों। तो जाने अनजाने में कभी कभी हम लोग मजाक मजाक में कर देते, हमको समझ में नहीं आता है हमारी हरकतों का क्या अंजाम होगा, बट इसकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना जरूरी है। सो दूसरे की अनामिकता भंग करने का मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि व्हाट यू हियर हियर यू लीव हियर। आप अगर एक ही मीटिंग में कुछ किसी की कहानी सुनते हो तो आप वहीं पर छोड़ के आपको जाना है। कई सदस्यों को ऐसी आदत होती है कि घर पे जाने के बाद में अपनी बीवी को, अरे आज मीटिंग में ऐसा हुआ, पूषण ने ऐसा बात किया, उसने तो इतना बड़ा लफड़ा करके रखा है, और फिर वो बीवियां एक दूसरे के साथ में बात करके वो बात जब पूषण की बीवी तक पहुंच जाती है तो उसके वजह से पूषण के घर में बड़ा तकलीफ हो सकता है। ऐसे कई सारे मेंबर्स का इस प्रकार से हल्की घर में उनको लगता है कि अपने बीवी को तो बता रहा हूँ, बाहर किसको बता रहा हूँ, लेकिन तू खाली अपनी बीवी को बता रहा है, वो बीवी खाली अपनी फ्रेंड्स को बता रही है, और वो फ्रेंड शायद आल मेंबर से वो शायद वो मेंबर की बीवी को बताएंगी, और उस तरीके से उसके घर में तो वो तकलीफ होने वाली है। सो इसके लिए हम जो शेयरिंग सुनते हैं मीटिंग में, वो हम घर में भी उसका जिक्र नहीं करते। यस राहुल। दोस्तों, मेरा नाम राहुल एक शराबी है। मेरे को एक विरोधाभास लग रहा है ये इसमें कि जैसा भाई व्यक्ति को महत्व नहीं है क्या, और कुछ दूसरे तरीके से भी लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। हर मुझे शुरुआत में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो भाई तत्वों को महत्व है, व्यक्ति को महत्व नहीं है। व्यक्ति को महत्व मत दो। ओल्ड टाइमर जो होता है या कोई भी होता है तो व्यक्ति को महत्व मत दो, यानी एक वो गलत उसकी तरीके से आगे वाली, इसको। वो आगे वाली ट्रेडिशन है, इसके बाद वाली है। अच्छा अच्छा, ओके। अभी हम वो लोग एक 11वीं पे सवाल है, ऐसा वो था। अभी 12वीं पे जाएंगे क्या? हम लोग अभी। ओके। दोस्तों, कोई और सवाल या शेयरिंग?
शेयरिंग द चंदू 2 मिनट मुझे करना है। राहुल शराबी दोस्तों, आज किसी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। अभी एक महीने वो बुद्धिस्ट साधु का कोई फेस्टिवल रहता है, और वो फेस्टिवल में वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा वो 15-20 दिन का फेस्टिवल रहता है, और रात दिन वो एक रंगोली सजाते हैं, रंगोली सजाते रहते, इतनी मेहनत करते हैं, यानी उसको जितना हो सके उतना सुंदर करने की कोशिश करते हैं वो लोग। और आखिरी में वो लोग वो रंगोली को पूरा मिटा देते हैं, एकदम वो सब निकाल देते हैं, यानी उसको हटा देते हैं वहां से। तो वो जो थॉट मेरे दिमाग में बैठ गया है कि भाई ये लोग इतना मेहनत से उसको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो दिमाग में रखते नहीं है, यानी और दिमाग में बात को रजिस्टर नहीं होने देते, उसको हावी नहीं होने देते। और एक बार मैंने हमारे एक क्लास ट्रस्टी भी थे, एक मैं कोई मुंबई में गया था, कोई टीआई कॉन्फ्रेंस थी वहां पे, और वहां पे भी वो एक क्लास ट्रस्टी आए थे कि बोले शराबी जो रहते हैं हमारे जैसे, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी उनको जो एक कुछ सक्सेस उनको हासिल होती है तो उसको भूल नहीं पाते। यानी मेरे जीवन का एक स्वभाव है कि मैं कोई भी चीज को रजिस्टर कर लेता हूँ, और उसको मैं पूरा ढिंढोरा पीट देता हूँ। मैं भी वो नए नए लगा था वो कंपनी में 12-15 साल पहले, तो उसका मैं अभी तक जिक्र करते रहता हूँ कि मैंने इतना माल बेचा था, इतना ये कंपनी को इतना आगे लेके गया था। तो वो मेरे जैसे शराबी का स्वभाव है दोस्तों। ये जो ट्रेडिशन है हमारी, जो अल्कोहलिक एनोनिमस की जो ट्रेडिशन है, वो हमारा ये आध्यात्मिक स्वभाव, वो जो स्वभाव है उसको कंट्रोल में रहती है कि भाई ढिंडोरा पीटो मत आप, और वहां जो चीजों को वहीं पे छोड़ दो, वो दिमाग में बोलो उसको। और ये बहुत बहुत मेरे को दोस्तों ये चीज काम में आई। और मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर मुझे दूसरे कोई इसमें जाना है, दूसरे स्वभाव में जाना है, तो मुझे जूना स्वभाव जो है छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ट्रेडिशन बहुत काम की है कि कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बस यही मुझे बोलना था। थैंक यू राहुल। दोस्तों, कोई और शेयरिंग या सवाल, या फिर हम मीटिंग क्लोज करते हैं? ठीक है। लास्ट कुछ 5-6 मिनट है। हाँ, लेकिन कोई शेयरिंग? मुझे एक अनुभव याद है। 2002 की बात है ये। मैं और मैं वो टाइम पे ट्रस्टी था, टीआई चेयरमैन, और हमारे लॉरी भाई थे चेयरमैन। हम दोनों पूरे 15 दिन की टूर पे गए थे केरला में। और कोचीन से लेके हम लोग हर एक गांव में से हर एक जगह पे जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, वहाँ के रिहाब सेंटर्स को मिलते थे, जो भी लोनर मेंबर्स वगैरह है उनको जमा करते थे, उनको मीटिंग चालू करने के लिए एनकरेज करते थे। ऐसा घूमते 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 पूरा केरला में से हम लोग जा रहे थे। और कुमारकम में हम लोग थे, और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पर केरला का एक बहुत बड़ा टेलीविजन स्टेशन वाले वगैरह सब आए थे। एवरी टाइम हम लोग बड़े शिद्दत से एनोनिमिटी का तत्व समझाते थे, हमारी किताबों को प्रमोट करो, हमारे के बारे में बात मत करो, हमारे चेहरे मत दिखाओ, बताते थे। इसके बावजूद वो जो हमारा इंटरव्यू हुआ, वो पूरा का पूरा उसका ब्रॉडकास्ट हो गया, और वो पूरा दुबई, बिबई, अबू धाबी, कहाँ कहाँ कहाँ, वो जहां जहां पर भी केरलाइट्स है, वो हर जगह पे वो ब्रॉडकास्ट हो गया, लाइव इंटरव्यू। और बोमा बोम सब जगह पे क्या चल रहा है, ट्रस्टी लोग ऐसा कर रहा है, ट्रस्टी लोगों ने ऐसे। अच्छा, ये हो रहा है, ये हमको आइडिया ही नहीं। हम तो अपना अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम जो भी सवाल आ रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं है कि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कहीं पर। बॉम्बे में से फोन, अरे क्या रहे हो तुम लोग, कहाँ कहाँ इंटरव्यू दे रहे हो, क्या कर रहे हो। और हम दोनों टेंशन में, हम लोगों ने उसको रोका, वो आदमी को भी बोला, अरे भाई हमने इतना आपको समझाया, ये है वो है अमुक है। अरे बोलता है, तुम थोड़ी कोई चोर उचक के हो, तुमने कोई गलत काम थोड़ी किया है, तुम कोई ऐसे ही कोई किसी को तकलीफ देने के लिए करे, तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, तो काम सबको जाना ही चाहिए वगैरह। वो उल्टा हमको लेक्चर दे रहा है, और हम उसको हमारा अनामिकता का तत्व समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वो भाई समझने को तैयार नहीं। वो ब्रॉडकास्ट हो गया, बोमा बोम हो गई, मैं और लॉरी हम लोग टेंशन में, अभी साला वापिस जाएंगे, पूरा सब लोग बोमा बोम करेंगे। और वो टाइम पे मुझे याद है कि हमारे
सीनियर मेंबर थे, मैंने उनको फोन किया, बोला यार ऐसा ऐसा बवाल हो गया। तो वो हंसने लगे जोरदार। और मैं बोला अरे हंस रहा है तू, मेरा इधर इधर हम लोग का पूरा एकदम हम लोग टेंशन में है, इतना सारा मेहनत करके उल्टा गाली खाने वाला काम हो रहा है। अरे बोलता है जब भी तुम ये काम करने जाओगे, रिमेम्बर अनोनिमिटी इज अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। तुम अगर पब्लिक के साथ काम करना जाओगे तो कितना भी कोशिश करोगे तो कभी ना कभी तो ये होना ही है। डू यू नो दैट बिल डब्ल्यू वॉज द बिगेस्ट एनोनिमिटी ब्रेकर। बोलता है सबसे ज्यादा दफा अगर किसी का आवाज, किसी का नाम, किसी का चेहरा टीवी वर्तमान पत्र में आया होगा तो वो बिल डब्ल्यू का है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो क्या ये हमारे पास पहुंच पाती? सो अनामिकता ये आध्यात्मिक तत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि तुम जाके चाहे वो करो। तुम पूरी तरह से दक्षता लो, पूरी तरह से प्रिकॉशन लो, और हर प्रकार से तुम इन्फॉर्म करने का प्रयास करो कि भाई हमारे तत्वों के बारे में बात करो, हमारी किताबों के बारे में बात करो, हमारे प्रोग्राम के बारे में बात करो, व्यक्तियों के बारे में बात मत करो। लेकिन कितना भी आप करोगे, आप अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हो तो कभी ना कभी तो ऐसे हादसे होंगे, और उसके लिए थोड़ा सा अंदर से तैयार भी रहो। ये उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये दिया था। तो दोस्तों जो काम करते हैं उन्हीं को ये तकलीफ होती है। जो जो चुपचाप बैठा हुआ है, मीटिंग में जाके छुप के बैठा हुआ है, घर में उसके उसके खुद के अभी तक भाई बहनों को या बीवी बच्चों को मालूम नहीं है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाते, उसको किस बात का डर है? जो काम करने को जाएगा और ये के बारे में बात करने को जाएगा, उसी को अनामिकता का भंग होने का खतरा होता है। ये विरोधाभास है, ये जो बोलते हैं ना उसको पैराडॉक्स ऑफ, जितना ज्यादा आप लोगों के साथ काम करने को जाओगे उतना ही ज्यादा अनामिकता का भंग होने का संभव है, और उतना ही ज्यादा उन्हीं लोगों ने अनामिकता के बारे में बात करना या उसके बारे में जागरूक रहना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। यस आपकी। मेरा नाम अभिमहेश्वर अभी। भूषण ने बताया उससे याद आया कि ये जो एलन और अपना ए का जो काम चलता है, मतलब उनकी मीटिंग, तो कई साल पहले मैंने सुना था, अरे ऐसा ऐसा होता है, फिर वो उसका बात होता है अपने मर्द का, मतलब अल्कोहलिक का, फिर ये वो, तो ये हुआ था, ऐसा सुना था मैं। लेकिन ये जरूर अपने को बताना चाहिए। जैसा कि मैं अभी मीटिंग कंडक्ट जब करता हूँ ना, तो ध्यान में आता है मीटिंग खत्म होने के पहले मुझे बताना है, भाई यहाँ जो भी अनुभव बताए गए, शेयर किए, सुने हैं, वो यहाँ के यहाँ छोड़ना है। और हमेशा मैं भूल जाता हूँ। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक ग्रुप में, अभी थाना में तो मैं जाता हूँ ना, तो लास्ट में कोई नहीं बोलता है, जो भी आप यहाँ अनुभव दिए हैं या सुने हैं तो यहाँ खत्म कर दो, घर में जाके बात नहीं। क्योंकि मेरे से भी होता था ऐसा, कोई बड़ा आदमी है तो अभी इस दुनिया में नहीं है, सामन करके, तो मैं मेरे मम्मी से बात करता था तभी, अरे यार वो इतना बड़ा दुकानदार, और मतलब ज्यादा मैं बात नहीं किया, लेकिन हो जाता है कि यार वो भी मीटिंग में है। तो ऐसा हो सकता है, या किसी की शादी हुई है, शादी बीवी चली गई है या घर गया है ना, तो मैं बोलता था यार थैंक गॉड, मतलब मैं मेरे पिताजी के घर में रह रहा हूँ, मेरे हाथ ऐसे हादसे नहीं हुए। तो वो बचपना है, मतलब समझता नहीं है, समझदारी। तो जैसा एनोनिमिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा, जैसा अभी भूषण भाई बता रहे थे ना, वो सही में मतलब होना चाहिए। तो ये याद आया कि पहले होता था ऐसा कुछ अनबन, मतलब मिसेस एलोन मेंबर है, मिस्टर ए है, जैसा भूषण भाई ने बताया, अगर मेरे बीवी तक बात चली गई तो उसको, उसके लिए जागरूकता लाने हमारा फर्ज है, हर एक मेंबर का है, जो कंडक्ट करता है उसने लास्ट में बोलना चाहिए। तो मैं ध्यान में आता है, मैं भूल जाता हूँ, मैं तो पैनिक ही हो जाता, कोई नहीं रहता है ग्रुप में, और मैं जब मेरे पे जिम्मेदारी आते तो ये सब हो जाता है। थैंक यू भूषण एंड चंदू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू अपी जी। एक्चुअली हमारे यहाँ मीटिंग में, जैसे मीटिंग का प्रेयर होने से पहले चेयरपर्सन ये हमेशा बोलता है कि व्हाट यू हियर हियर, व्हेन यू लीव हियर, लेट इट बी हियर।
तो जो मतलब जो भी आपने यहाँ पे सुना है, जब यहाँ से जाओगे उस चीज को यहीं पे छोड़ दो भाई, अपने साथ मत लेके जाओ घर पे या बाहर में। एनीवेज दोस्तों, एक अनाउंसमेंट है। नहीं, लास्ट में बोलना जरूरी है कि तब तक वो संडे रिवाइवल वैसे ग्रुप में की रहता है। लास्ट में बताना उचित हाँ, है, क्योंकि सब लोग लास्ट लोग में ही आते बोलते भी हैं। है ना। हाँ, सब लोग आते हैं, हम्म, क्योंकि 7:45 बजे हाँ, आने वाले लोग हैं। थैंक यू। बराबर। अच्छा, हाँ, तो दोस्तों अनाउंसमेंट है, परसों हमारे रिवाइवल ग्रुप की एक मिनी विजिल हो रही है। तो सुबह आप 9 बजे जूम में भी लॉग इन कर सकते हैं इसी लिंक पे, और लाइव आप 2 बजे तक ये चलेगी मीटिंग। तो आप देख सकते हैं, या आप वहाँ पे होली क्रॉस स्कूल भी जाके अटेंड कर सकते हैं, और रिवाइव ग्रुप की एनिवर्सरी भी मनाई जाएगी वहाँ पे। ओके, तो हम 42nd sanity prayer लेते हैं। एनिवर्सरी है, 42nd एनिवर्सरी हाँ, 42nd बताना। ठीक। तो हम सैनिटी प्रेयर लेते हैं वी वर्जन पे, इंग्लिश में। गॉड grant us the serenity Grant us the serenity. Of the things. Yes, accept the things we cannot change, courage. courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Keep coming back, it was worth it. Bye. Good night. Thank you all. Good night, everybody. Good night. Good. Good night.